قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی رات ہے، یقیناً یہ رات بعض احادیث میں ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کے برابر ہوتی، عظمت والی رات ہے۔ اس رات کو سورہ کہف کی تلاوت جناب نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے والا دن یعنی جمعرات کو شام سے لے کر جمعے والا دن مغرب تک یہ دعاؤں کے اوقات ہیں، اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے سیدھا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ قیمتی بنائیے اس رات کو، کل جمعے کے دن کو ابھی سے پروگرام بنا لیں، وقت کو آگے پیچھے کریں تاکہ نماز جمعہ کے لیے آپ اپنا وقت فارغ کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا ہے، اور یہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہو تو معجزہ بنتی ہے، اکیلی روح کے ساتھ ہو تو معجزہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ نمبر 2، کب ہوا؟ بے شک تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ کیوں ہوا اس کی تحقیق کیجیے، اور اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا رکھا اس کی تحقیق کیجیے۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی بلندی ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندیوں پر لے گیا کہ جہاں آج سے پہلے اور نہ آج تک نہ آج کے بعد اللہ پاک کسی کو لے گیا اور نہ کسی کو اللہ پاک لے جائے گا۔ یہ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور نمبر 2، اس سفر میں جو معجزہ ہے وہ لیلن نون تنوین کے ساتھ، پوری رات نہیں، آدھی رات نہیں، رات کے کچھ لحظوں میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ قادر مطلق ہے، جو وقت کو بنانے والا ہے، وہ وقت کی رفتار کو تھام بھی سکتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی سیر بھی کرائی، اور پھر بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا، اور اس سفر کے اندر پھر قدم قدم پر معجزات ہی معجزات ہیں۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، ایک سونے کے تشت تھال میں رکھ کر میرے دل کو زمزم کے پانیوں سے دھویا گیا، پھر صفائی کر کے اس دل کو میرے سینے میں رکھ کر میرے سینے کو سی دیا گیا۔ اتنے میں میرے لیے ایک سواری لائی گئی، جو سواری گھوڑے سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔
खच्चर की तरह। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की कि ये सवारी जन्नत की है और इसका नाम बुराक है। बुराक बर्क से बना है और बर्क का माना बिजली है। पहले सिपारे की पहली ही आयत में वरादुम व बरको, राग कहते हैं कड़कने वाली बिजली या बिजली की कड़क को, और बर्क बिजली है। इस सवारी को यह नाम इसलिए दिया गया कि जिस तरह बिजली एक मिनट में हजारों मील का सफर कर जाती है, बेऐनी उसी तरह अल्लाह पाक ने इस सवारी को भी बिजली की रफ्तार अता की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां तक नजर जाती थी मेरी, वहां तक उसका एक कदम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस सवारी पे सवार कर दिया गया। मैंने देखा कि आगे पीछे फरिश्तों का लाओ लश्कर है, और बाद रिवायात में मिलता है कि 70,000 फरिश्ते थे। यहां एक बात अकीदे की करता चलूं, नबी जाते वहां हैं जहां अल्लाह बुलाए, या जाते वहां हैं जहां अल्लाह इजाजत दे, इसलिए कि उनका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह जहां चाहे अपने नबी को भेजें और जहां चाहे अल्लाह अपने नबी को न भेजे। ये आपके और मेरे इख्तियार में नहीं कि हम जिस दिन चाहे हलवे की थाली सामने रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर में बुला लें, अपने मोहल्ले में बुला लें, अपने घर में बुला लें। जैसे आजकल आम तौर पर हम ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुलाने पर भी आ जाते हैं। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सफर करते हैं, या तो 70,000 फरिश्ते साथ होते हैं, या फिर 70,000 नहीं, 70 करोड़ नहीं, 70 अरब नहीं, इससे भी ज्यादा तादाद में फरिश्ते जमा हो जाएं, एक तने तनहा हजरत अबू बकर सिद्दीक हो जाएं, वो नबी को ले जा सकते हैं, वो भी अल्लाह की इजाजत से। आपके और मेरे इख्तियार में नहीं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लें या वो हमारे बुलाने पर तशरीफ ले आते हैं, इसलिए कि उनकी उंगली अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जहां चाहे ले जाए और अल्लाह जहां ना ले जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां का सफर नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे सवार कराया गया तो वो सवारी थोड़ी उछलने लगी, शोखी करने लगी, तो जिब्राइल अमीन ने उसके कानों में आवाज देकर कहा कि आज तुम्हारे ऊपर सवार वो हैं जो पूरी कायनात में अव्वलीन और आखिरीन में जिनके बराबर का कोई नहीं, आज तुम्हारे ऊपर वो सवार हो रहे हैं, तुम्हारी खुशकिस्मती है। सवारी ने शोखियां ये सुनकर बंद कर दी। आजकल आमतौर पर हमारे घरों में, बाजारों में बुराक की एक तस्वीर बनी हुई नजर आती है, जिसका चेहरा एक औरत की तरह है, पीछे उसके दुम लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ होता है आजा बुराक नबी, के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुराक की तस्वीर है। नाज़रीन व सामीन, मैं आपसे पूछता हूं, क्या वहां को कैमरे वाला खड़ा था? हालांकि ये रात की तन्हाई है, लैलन, जब सारी दुनिया सो रही है। मेरा अल्लाह न उसे नींद आती है न ऊंघ आती है, वो हमेशा जागने वाला है। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रात के उस हिस्से में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नींद और जागने के दरमियान में थे, या बाद मुर्रिखीन ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, फरिश्ते आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी पे सवार करते हैं। ये कौन सा वहां फोटोग्राफर खड़ा था, कैमरे वाला खड़ा था कि जिसने उसकी तस्वीर बनाई? नाज़रीन और सामीन, ये वो जिहालत है जो आज हमारे मुआशरे में मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों की तरफ से आई, और हम भी उन्हीं मूर्तियों की पूजा में लग गए कि उनके मिसल बना दिए गए, ताजिए ताबूत बना दिए गए और कहा गया कि ये उनकी तशबीह है। हमारे दीन में, हमारे पाक दीन इस्लाम में इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 फरिश्ता मेरी सवारी के साथ चला। अचानक खजूरों का घुंड का इलाका आया, बागात का एक इलाका आया कि जहां खजूरें ही खजूरें थी। जिब्रील अमीन ने मेरी सवारी को रोका और रोक कर मुझे कहा कि उतरिए, यहां 2 रकात नफल अदा कीजिए। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन सी जगह है? तो जिब्रील ने कहा कि ये हिजरत मक्के से आप करेंगे और आप मदीने पहुंचेंगे, ये आपकी हिजरत की जगह है, ये आपकी हिजरत की जगह है। और फरमाया गया बेईनी वही जगह जहां आज मस्जिद नबवी है, उसी जगह पर मेरी सवारी को रोका गया और मैंने 2 रकात नफल अदा किए। फिर मुझे सवारी पे सवार करा दिया गया और फिर मेरी सवारी चली। फिर एक ऐसे इलाके से चली कि मुझे बताया गया कि ये मदियन का इलाका है। मदियन वो इलाका है जहां शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबाद थे और उनका इलाका नबूवत था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क के मिस्र से निकले तो यहां पहुंचे। चुनाचे वो किस्सा बयान नहीं करते, यहां हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी से हजरत मूसा का निकाह हुआ। फिर यहां 8-10 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बकरियां उस शादी के हक मेहर के तौर पर चराई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस उनके मिस्र की तरफ लौटे। ये शहर मदीना आज भी मौजूद है और ये इलाका उर्दन की सरजमीन पे आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सवारी आगे चली, मैं देख रहा था कि कब्र में एक आदमी खड़े नमाज पढ़ रहे थे। तो जिब्रील अमीन ने मुझे बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। आज हो सकता है ये बात हमारे ज़हन में ना आए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये आज भी मुमकिन है, आज भी मुमकिन है। उलमाए किराम ने किताबों के अंदर हवालों से लिखा है कि बाज कुबूर ऐसे भी हैं कि जिनके करीब से गुजरने वालों ने उन कुबूर से कुरान पाक की तिलावत की आवाजों को सुना। आज भी कई खुशकिस्मत ऐसे हैं कि इंतकाल के बाद, कब्र में दफन होने के बाद उनकी कुबूर से अल्लाह पाक ने खुशबुओं की हवाएं चलाई और लोगों ने उन खुशबुओं को सूंघा और महसूस भी किया। बल्कि बाद लोगों ने उन कुबूर की मिट्टी को भी उठाया और घर में ले आए और मुद्दतों तक घर में पड़ी हुई मिट्टी से भी खुशबुएं निकलती रही। ये अल्लाह के हाथ में है। मैंने पहले कहा कि मौजज़ा कहते किसे हैं कि
सारी मखलूक जहां आजिज हो जाए कि वो काम उनसे नहीं हो सकता, अल्लाह पाक वो काम अपने किसी नबी के हाथ पे जाहिर कर दे। हाथ नबी का होता है लेकिन उसके अंदर ताकत और कुदरत अल्लाह की होती है, एक अनहोनी चीज हो जाती है, उसे मोजज़ा कहा जाता है। कभी कभी किसी वली के हाथ पर भी अनहोनी चीज जाहिर हो जाती है, इसको करामत कहा जाता है। मोजज़े में और करामत में उलमा ने जो फर्क लिखे हैं उनमें सबसे बड़ा तो यह है कि मोजज़ा वो होता है जो नबी के हाथ पर जाहिर हो, करामत वो होती है जो वली के हाथ पर जाहिर हो। मोजज़ा वो होता है मिसाल के तौर पर कि ये दीवार हमसे कितनी दूर है, नबी को फरिश्ते बिल्कुल नाप कर बता देते हैं कि ये 8 फुट है और नबी कह देता है ये 8 फुट है। 1 इंच अल्लाह पाक न इधर होने देता है न उधर होने देता है। लेकिन वली अंदाजा करता है, शायद इतनी होगी, लेकिन अल्लाह पाक वली की बात को भी पूरा करते हैं। आज भी दुनिया में औलिया मौजूद है, अल्लाह उनके हाथों पे करामात को जाहिर करता है। हमारे उलमा ने जहां मोजज़ात पर ईमान रखा है वही वली की करामत का भी इकरार किया है और उसे भी माना है। दुनिया में बाज लोग हैं जो मोजज़ात के मुनकिर हैं, लेकिन एक बात उनको भी ज़हन में रखना चाहिए कि मोजज़ा होता ही वही है कि जिसमें ताकत और कुदरत अल्लाह की होती है, लेकिन अल्लाह उस अनहोनी चीज को नबी के हाथ पर जाहिर कर देता है। कुरान पाक में कई मोजज़ात मिलते हैं नबियों के। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी फेंकी तो सांप बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंधे के चेहरे पर हाथ फेरा तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसकी बीनाई वापस लौटा दी। कोहड़ी के मरीज के जिस्म पर हाथ फेरा तो अल्लाह पाक ने बीमार को तंदुरुस्त कर दिया। मुर्दा कब्र से अल्लाह के हुक्म से कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अल्लाह पाक ने पानी के चश्मे जारी कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह ने बादलों को हुक्म दे दिया जाके बारिश बरसा दो। कई वाकयात ऐसे मिलते हैं, लेकिन मैंने कल भी अर्ज किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी ही मोजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सवारी आगे चली। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी कि कुबूर में होता क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे, सवारी आगे चली तो बैतुल लहम का इलाका आया जहां सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। जिब्रील ने बताया कि ये बैतुल लहम वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। सवारी आगे चली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैतुल मक़दस आया, मुझे सवारी से उतारा गया, बिठाया भी गया, उतारा भी गया। अल्लाह के हुक्म से 70,000 फरिश्ता साथ। जिब्रील अमीन ने पत्थर में सुराख करके मेरी सवारी को बांध दिया, इसलिए कि फिर इसी बैतुल मक़दस से मक्का वापस भी आना है। मुझे मस्जिद अक्सा में लाया गया तो मैंने मस्जिद अक्सा में नूरानी चेहरों वाली शख्सियात को बैठे देखा, जैसे वो सारे मेरे इंतजार में थे। पहुंचे हैं तो जनाब जिब्राइल ने अजान कह दी। अजान हुई। अब यह अजान कौन सी थी
یہ میں علماء سے درخواست کروں گا کہ کتابیں نکالیے، کیا اس اذان کے شروع میں بھی کوئی ملاوٹ تھی، درمیان میں بھی ملاوٹ تھی، یا آخر میں بھی ملاوٹ تھی، یا سیدھی اللہ اکبر سے شروع کی گئی؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذان آسمان سے آئی اور سکھائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، کیا اس اذان کے شروع میں بھی کچھ تھا، درمیان میں بھی کچھ تھا، آخر میں کچھ تھا کہ نہیں؟ یہ علماء سے درخواست کروں گا کہ اس کی حقیقت کو نکالیں۔ میں بحث پہ نہیں پڑھتا، آگے چلتے ہیں۔ صفیں باندھ دی گئی، اقامت کہی گئی، جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز انبیاء کو پڑھائی۔ کیا کانوں تک ہاتھ اٹھایا، کندھوں تک ہاتھ اٹھایا، یا دونوں کے درمیان تک اٹھایا؟ سینے پہ ہاتھ باندھے، ناف پہ ہاتھ باندھے، یا ناف کے نیچے باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں سے شروع کی؟ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یقیناً نہیں پڑھی ہوگی، اس لیے کہ ان کو تو فاتحہ دی نہیں گئی۔ ان کی نماز بغیر فاتحہ کے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بحث ہے، ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد تھے، نفل تھے۔ سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ 1,24,000 یا 40,000 یا جتنے بھی کم و بیش انبیاء اور رسول تھے، سب یہ آپ کے پیچھے جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اب یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جتنے تھے، ان کی نماز جو پیچھے مقتدی تھے صرف روحیں تھیں یا اجسام بھی تھے؟ نماز صرف روح سے ادا نہیں ہوتی، نماز کے اندر جسم بھی حرکت کرتا ہے۔ قیام، رکوع، سجود، قوما، سجدہ، تشہد، دونوں طرف سلام، اس کے اندر وجود کا، جسم کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے اپنی اپنی قبروں میں تھے۔ اب یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، انکار کرنے والے کہاں تک جائیں گے؟ بمع اجسام کے اللہ پاک نے ان کو قبروں سے اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر دیا، مقتدی بنایا، ان کو امام بنایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں علماء کی نظر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا تعارف کرایا گیا۔ اب یہ تعارف، یہ بھی عقیدے کی باتیں آ رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو نہیں جانتے تھے، وہ ان کو نہیں جانتے تھے، جاننے والا صرف ایک تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نے اپنا نام لے لے کر بتایا کہ میں فلانا اللہ کا نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف ہوا۔ تعارف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، مسجد اقصی سے آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگائی گئی جو سونے اور زبرجد کی بنی ہوئی، اب مجھے اس پر بٹھا کر پہلے